So good morning. Today on 23rd May 2023, this is our special orientation lecture on NDA, that is Army Navy Air Force, and NA, that is Naval Academy Examination. And this special orientation course we started on 22nd May yesterday 2023. Today we started our second session with General Studies section. And now this is today's second session on SSB, okay, SSB, Service Selection Board Interview, okay. Means once you qualify your first stage, written stage of 900 marks, SSB is for next 900 marks. So आजच्या या सेशन साठी माझ्यासोबत कुणाल आहे जे NDA च्या एक्झाम साठी मेंटर आहेत आणि ते तुम्हाला आता SSB बद्दल सांगतील, ओके. त्याच्यानंतरचं नेक्स्ट सेशन हे मॅथ्स वरती असेल, तर सगळ्यांनी कंटिन्यू राहा. या कुणाल, ओव्हर टू यू. Good afternoon, everyone. I am Kunal Suresh Warte, and I'm very happy that this much students are joined for SSB interview and NDA foundation course. And I would like to share SSB interview some tips and what tests are consist in SSB interview. There are psychological tests, there are group tasks, and everything I will present on screen by PPT. Is screen visible? Presentation is visible? No? No, sir. Sorry, presentation. नाही दिसत आहे. Just a minute. Right. Hello. So SSB is a 6-day interview conducted by Indian Armed Forces, and here the candidates are required some of the tests which they can qualify. So I will explain each and every test. So next slide is about SSB boards. So these are some boards which are given by a specific number. So as in Indian Navy, in CST there is naval dock and everything. So they get specific number to their cars and everything is specific for Indian defense. So these are SSB boards. After clearing your written examination, you will be getting call for SSB interview. Now this SSB interview is located in East, Center, West, all over India. So for you are willing for Army, then you will directly get call from Army. But first we have to log into indianarmy.nic.in. So here there is a procedure for SSB interview. You definitely must go through it, and it is very important to go through the SSB interview procedure. So it is basically to check OLQs. OLQs means officer like quality of a candidate.
Then SSB entries. There are two types of entries. First is direct entry, second is indirect entry. So in indirect entry, there is no need to write any exam. As I just completed my 12th past 2 years. Then I and my friends we wrote an application and I got called from SSB interview, that is Technical Entry Scheme 45 at 2019-20. So at that time the COVID has started. That's why I did not went to SSB interview. My center was Bhopal, Madhya Pradesh. But my friends who went for interview, they got screened out due to documentation. Now it is very important to you after you are completing 12th, all the documents must be proper. Means your 10th certificate, passing certificate, every should be systematic, because discipline is very required in your Indian Army or Indian Navy, Air Force, whatever it may be. So the entries like Navy, you must visit naval site, naval website, Air Force website, Indian Army. They recruit candidates, young candidates, that is from 18 to 25 years. They uh, for job opportunity they produce, but there is very important to give interview. So interview, the documentation is very important. So my friends went there and they got just screen out due to they did not have any documentation properly, because they had only Xerox. They require proper documentation. So this is very nice that you don't have to write exam and you will go directly to SSB interview. So second entry is indirect entry. I myself have given ND examination 2 to 3 times, but I did not clear due to I think maths or anything it may be. But now I am giving CDSE examination and hoping to clear soon it. But one of my friend from my batch at Nagpur, I was in Defense Service Academy, Nagpur, Bandara. So one of my friend, best friend, Padman Saugule, he has cleared and he is at second year at Khadakwasla, Pune. So he is in Indian Naval. Now after 2 years, he will be graduate as an officer and he will be promoted as a lieutenant, sub-lieutenant. So I will definitely tell him someday to contact you guys who will get admission. Now there are two sets. In SSB, there is phase 1 and phase 2. It consists of 2 tests. You can take down running notes. OIR, Officers Intelligence and Rating Test. In UPSC prelims, that is Civil Services Examination, we have to clear CSAT. And that CSAT also has verbal and non-verbal. Verbal and non-verbal means there are some missing words. And means example I will give you for OIR, that is Officers Intelligence and Rating Test. Now bird is to fly, man is to dash. So these are some common questions. Means now bird is to fly, man is to walk. So these are asked in SSB interview during after your documentation. पहले documentation होता है, उसके बाद में आपका OIR टेस्ट होता है. तो उसमें आपको बेसिक पूछेगा. Then I will give you brief about OIR test. Now this test, they will give you 2 booklets of 40 to 50 questions. Now before they will give 2 booklets, they will give you a what is on for trial basis 1 booklet. They will give you instructions. They will ask you to solve and everything. So test is conducted to check the basic level of intelligence. This is common. The 2 booklets to be solved with 40 to 50 questions each. But main challenge is the time limit here. Only 20 to 30 minutes are there to solve 40 to 50 questions. So time limit is important. If you are stuck in one question, then don't stuck at one question. You should go to next question immediately, because although candidates will be given practice set before the test, that is okay. Now the phase 1 consists of second test, that is PP and DT, that is picture prescription and description test. Now this picture, you will be given a slideshow. The officer, that is GTO officer, interviewing officer, and psychologist. These 3 are the 3 assessors. Means they will analyze you at each phase.
but they don't tell you or point out you that you are doing wrong. Okay, so this is very important to be aware of. Always stay calm and just focus on what they are instructing. The instructions are very important, which are given by any of three of them. Any may say at any time, whatever. So I would like to tell second one, that is picture PP and DT. This phase one is also known as screening process. You know that? Okay, then I would like to tell detail about PP and DT. Here there is a slideshow. The picture is given by some of the characters on the screen, and the picture is blur. It is hazy type, and you have to build your story by own. So which is shown. Firstly, mark the characters given on the screen. Okay, in story, we have first column where you will get chest number. If you are in screening, then you will get chest number. The chest number is very important. By that chest number, you will be called in whole SSB. You have to be aware of that. So chest number, your name, your roll number, the roll number which you got during admit card. Okay, that one. So in story, we have to write age, sex, mood, name. This you have to imagine the character. You can imagine as yourself also. You can imagine as your parents, anything, whatever the picture is asked. If one male is asked, if two male and one female is there, they are doing some work, or one is sitting or one is doing anything. But before writing the story, you have to write their age, how many persons are there, their name, and what the activity they are doing in short. But in story, you have to describe everything. I will tell what you have to describe in short. Now, what led to the situation? मतलब वो situation कहाँ पे आपको लेट जाता है? वहाँ पे currently happening, वो situation में current happening क्या है? और final outcome. लेकिन the story should be realistic and it should be proper planned, well planned. No negative, not at all anything you have to put negative. The story should be proper, and that's why your OLQs are checked by all of these assessors. Assessors means GTO, psychologist और वगैरह वगैरह. उसके बाद में आपको मार्किंग सिर्फ पता है ना 900 मार्क्स का. रिप्लाई ऑनलाइन वाले बोलो कुछ तो. 900 मार्क्स का मार्किंग स्कीम है, लेकिन वो डिवाइडेड है 4 पार्ट में. दैट इज 225 into 4, 900. ओके, सो आपको 90 से ज्यादा ही लाना है, लेकिन आपको वो बता दे नहीं है. हाँ, आपको 90 मिला है, 90 से लेस मिला है. अगर आपको इतना ध्यान रखना है, आपको 90 से लेस मिला है एक भी इसमें, तो आप एलिजिबल नहीं है. हम जल्दी लाइन है जी. हाँ, हेलो, हाँ बोला. हेलो, मैं टेलीफोन है किती झाले ती. नाही हेलो, म्यूट योरसेल्फ. आजी दीदी बोल रहे थे. दीदी डॉक्टर दादा तुम्ही नाही जाणार. तुम्ही बाय चालले नको. तुम्ही बाय चालले ना बाबा सोबत. टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. तुम्ही चालले का मतलब? हेलो, my voice is audible. Okay, I was telling about PP and DT, no? So no, marking scheme. So if you get 90 plus, then you will get a booklet in which the assessor will write yes 90 plus, and if there is written yes, then you are gone to day 2. It is 6-day program, you know, no, 5 to 6 days. In Airforce, it may go to 7-day, but it's not possible. Conference may be there at 7-day.
but generally they conduct in 5 to 6 days. So if you get less than 90 marks, then they will write clearly no. Since you will understand less than 90, then you are not going to day 2. You have got screen out. Then PP and DT, I told about what we have to write in starting, what is shown on screen, characters, everything, what is their mood, what is their age, what is their sex, everything we have to write. Okay. So there will only 30 seconds the picture will appear on the screen. 1 minute will be there to write, note down the characters and what I said just now. ओके जेंडर एज वगैरह वो सब लिखने का 1 मिनट में आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको स्टोरी लिखने के लिए 4 मिनट मिलेंगे सिर्फ। ओनली 4 minutes will be allotted you to write down the story. So 1 minute will be given to each candidate to narrate their story. आपको सबके सामने नरेट करना, ओके कि आपका स्टोरी क्या है, मतलब आप सबका स्टोरी सुनने का उस टाइम, क्योंकि इसने क्या लिखा है, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी रहते हैं कुछ जो अच्छा लिखते हैं, तो उनका भी स्टोरी सुनने का, आपका खुद का भी सुनने का, वो लोग सुनेंगे मतलब। तो उसके बाद में टू नरेट द स्टोरी इंडिविजुअली 15-20 मिनट में आपको वो बोलना है वो स्टोरी लिखने के बाद। उसके बाद में 15 to 20 minutes आर गिवन टू द ग्रुप। आपका जो ग्रुप बना है ना, आपका ग्रुप बनाते हैं 14 to 16 members, something what like that. Then they will ask to compare your stories within yourselves and make a story or put combine a story accordingly. मतलब आपका ग्रुप को एक स्टोरी बनाना है, टॉपिक वही रहेगा जो पिक्चर दिखाया था ना पीपीटी पे, वही टॉपिक रहेगा, उसमें से आपको ग्रुप में स्टोरी बनाना है, मतलब स्टोरी अच्छे से बनाना है, प्लान करके बनाना है, मतलब रियलिस्टिक रहना चाहिए, नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, वो सब तो आएगा, फिर उसमें मींस हॉनेस्ट से रहना चाहिए, अच्छे थॉट्स रहने चाहिए, वो सब आपको करना पड़ेगा। तो उसमें उसके बाद क्या होता है, टू डिस्कस एंड अराइव एट द कॉमन स्टोरी, मतलब कॉमन स्टोरी पे आपको अराइव करना है वो स्टोरी लिखने के बाद। 1 minute again is given to the candidate nominated by the group to narrate the story. तो आपके ग्रुप में से अगर आप बहुत होशियार हो, आप स्टोरी अच्छे से डिस्कस कर पा रहे हो, तो आपको नॉमिनेट करेंगे वो लोग, मतलब आपका ग्रुप जो फॉर्म हुआ है उस टाइम। तो नहीं, मतलब ये दूसरी बार, अगर पहली बार आपको खुद का इंडिविजुअल स्टोरी बताना है, उसके बाद आपको एक रूम में लेके जाएंगे वो लोग, तो उस रूम में जाके आपको सेमी सर्कल में बिठाएंगे वो लोग, मतलब इंडिविजुअल ग्रुप, मतलब जितना ग्रुप है 4 to 5 रहेगा, 6 रह सकते हैं, कुछ भी कितना भी रह सकता है, तो ग्रुप को सेमी सर्कल में बिठाएंगे, आपको स्टोरी बोलने मतलब डिस्कस करने बोलेंगे, और ग्रुप में लोग नॉमिनेट करेंगे, जैसे लोकसभा में नॉमिनेट होते हैं ना मेंबर, वैसे तो वो नॉमिनेट करके बताएंगे आपको कि आप बोल सकते हो ना, तो आप बोलने का हाँ बोल सकते हैं। तो 2 लोग रहते हैं, मतलब जीटीओ रहेगा और साइकोलॉजिस्ट भी रहेगा। साइकोलॉजिस्ट एक ही ऐसा बंदा है जो सिविलियन रहेगा, मतलब ही इज नन अदर देन, मींस ही इज नॉट आर्मी ऑफिसर, he is other than army officials, but the GTO and interviewing officer, they both are well educated, well qualified Indian Army, Navy, Air Force, whatever it may be, उन तीनों में से रहेंगे वो लोग, उनका दिमाग बहुत स्ट्रांग रहेगा, फास्ट रहेगा, वो जल्दी से पिकअप कर दे कौन क्या गलती कर रहा है और नोट डाउन कर दे, इसलिए आपको ध्यान से जो बोल रहे हो आपको सही समझ के बोलना है, सोच के बोलना है, ठीक है। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख के लो, PIQ, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, PIQ, इंफॉर्मेशन सॉरी पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो ये PIQ में क्या होता है, आपको मतलब आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी है वो आपको फॉर्म देते, 2 फॉर्म देते, इस बार भी 2 ही देते,
तो ये 2 फॉर्म में आपका आपके बहन कितने, भाई कितने, आप उसमें से कितने कितने बच्चे हो, मतलब आप कितने नंबर के हो, उसके बाद में आपका फैमिली बैकग्राउंड, फादर मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, उसके बाद में मतलब डिटेल रहेगा आपके बारे में। ये डिटेल क्यों लेते हैं वो लोग, क्योंकि यही डिटेल मोस्टली यही डिटेल आपको जो 5th डे में इंटरव्यू होता है, 4th या 5th डे में इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस में ये दोनों पूछे, इस फॉर्म्स के बेसिस पे पूछेंगे। तो आपका हॉबी आपने डाला सिंगिंग डांसिंग और उधर आपको करने को बोला और आपको आया नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के डालना है। मतलब आप अगर वायलिन प्ले करते हो अच्छे से, बहुत अच्छा वायलिन या फिर पियानो बजाते हो, तो आप बिंदास डाल सकते हो, वो आपको परफॉर्म करने नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको सुनाने बोल सकते हैं, मतलब गाना बिना गाना बोल सकते हैं। सो एवरीथिंग शुड बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द PIQ। अभी इसके भी 2 फॉर्म क्यों भर के लेते हैं वो लोग, एक फॉर्म देते हैं इंटरव्यू ऑफिसर के पास, दूसरा देते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। जो इंटरव्यू ऑफिसर है और साइकोलॉजिस्ट है, ये लोग अच्छे से पढ़ते हैं, एनालिस करते हैं, उनका काम वही है। जो GTO बचता है, थर्ड असेसर, उसका काम है ग्रुप डिस्कशन, ग्राउंड की जो टास्क है तीसरे चौथे दिन, वो उसमें बिजी रहता है, वो कंडक्ट करता है। उसके बाद में योर पर्सनल इंटरव्यू में डिपेंड ऑन दिस फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में आता है फेज 2। पेज चेंज हो गया। नाउ फेज 2 कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर पार्ट्स, ठीक है। अभी ये थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, आपको अगर नोट डाउन करना है कर सकते हो, क्योंकि अभी कैसा है, अगर जो बंदा मतलब कोई भी हो, मेल फीमेल, मतलब उसको कैंडिडेट बोलते हैं बाद में, लेकिन अभी से हम लोग कैंडिडेट बोलेंगे। जो डे 1 क्वालिफाई होता है, मतलब पास आउट होता है, तो उसको वो लिस्ट लगता है बाहर। जो जो फेल हुआ है वो तो उसका तो नाम नहीं रहता, वो जिसका नाम रहेगा वो भर जाएगा। लेकिन जो क्वालिफाई होता है तो वो डे 2 से लेके डे 5 तक उधर रहता है, उसको बीच में बाहर कर नहीं सकते हम। तो उसको पूरा टास्क कंप्लीट करना ही होगा, लेकिन उसका जो मेन टास्क है, मतलब वो फेज 2 है। फेज 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हियर देयर आर 4 मेजर टेस्ट, और वी कैन कॉल इट एज साइकोलॉजिकल टेस्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइकोलॉजिस्ट बराबर एनालिस करते हैं कौन क्या गलती कर रहा है, उसका लैंग्वेज स्किल क्या है। इंग्लिश आना चाहिए प्रॉपर, मतलब अभी अभी मैं भी मराठी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि SSB इंटरव्यू इज टोटली बेस्ड ऑन योर लैंग्वेज स्किल। ग्रामेटिकल एरर, अगर बहुत ग्रामेटिकल एरर कर रहे हो आप आपका PPI एंड DT में या फिर कौन से भी टेस्ट में, तो फिर वो बैड इंप्रेशन पड़ता है। बैड इंप्रेशन आता है, इसलिए वो अच्छा नहीं रहता, मतलब मार्क्स कम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको फेज 2 में अगर आप सिलेक्ट हो गए, तो उसमें पहला टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट। लिख लो सब लोग, साइकोलॉजिकल टेस्ट। जो स्लाइड में है उसमें से देख के लिख सकते हो आप लोग। साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर सब डिवाइडेड 4 पार्ट्स में है। हुआ लिख के? Okay, the first subdivided test is a thematic appreciation test. Thematic appreciation test. So TAT, the test of imagination, where 11 plus 1 pictures are displayed on the screen. आपको यहाँ पर 11 पिक्चर्स एंड 1 डिस्प्ले किए जाएंगे स्क्रीन पे। तो इसमें भी 11 पिक्चर रहेंगे जिसको में शॉर्ट स्टोरी लिखना है। जो पहला वाला था ना PPI एंड DT, उधर आप लिख लो 90 to 100 वर्ड्स में स्टोरी रहना चाहिए। 90 to 100 वर्ड्स। PPI एंड DT which was in phase 1, मिनिमम 90 मैक्सिमम 100 वर्ड्स में स्टोरी रहना चाहिए। तो अभी फेज 2 में आते हैं। जो मैंने बताया फर्स्ट वन TAT, उसको शॉर्ट फॉर्म में है टैट। तो इधर आपको here you will be shown 11 pictures and plus 1
स्लाइड और पीपीटी, जो 11 पिक्चर्स है उस पे आपको स्टोरी लिखना है सब में, और जो एक स्लाइड है वो ब्लैंक स्लाइड है, वो आपको बाद में बताऊंगा क्या रहता है। कैंडिडेट्स हैव टू राइट स्टोरी बेस्ड ऑन पिक्चर इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 मिनट्स। तो 15 सेकंड के लिए आपको पिक्चर डिस्प्ले, स्लाइड 1 डिस्प्ले होएगा, तो आपको 15 सेकंड में एनालाइज करना है। तो 1 मिनट में उसमें देखना है क्या दिया है, सिचुएशन क्या है, बस में लोगों की बहुत गर्दी है, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज एग्जांपल। द बस इज रनिंग, द बस अराइव्ड एट बस स्टॉप, द सिचुएशन इज लाइक दिस एंड देयर इज लॉट मोर क्राउड। तो आपको उसमें सेम जो पीपी एंड डीटी में किया है वैसे ही यहाँ पे करना है। आपको पहले कैरेक्टर लिखने, आपको बहुत कैरेक्टर रहेंगे, सबका नहीं लिखना, 2-3 कैरेक्टर मेंशन कर, ठीक है, नॉर्मल बेसिक थिंग है। तो आपको उधर लिखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है, और ये भी नेगेटिव में जाना नहीं चाहिए। मतलब एसएसबी में कोई भी चीज नेगेटिव में जाना नहीं चाहिए, उसमें से आपकी मेंटेलिटी दिखती है, आपका भविष्य दिखता है आगे का, कि आप क्या सोचते हो। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो दैट इज नॉट ऑफिसर लाइक क्वालिटी। नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए। ऑफिसर, आप बहुत बड़े ऑफिसर बनने वाले हो, तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो दोस्त है जो अभी प्रद्युमन चौगुले, वो एनडीए में है अभी फिलहाल, तो उसका अभी तो फोन अलाउड नहीं है, इसलिए वो जून में आने वाला है, तो वो बताएगा इंडिया में क्या क्या रहता है, कुछ कुछ मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ उसके बाद। क्योंकि इंडिया इज वेरी ओनली वन एट खड़कवासला and it is very nice academy. I was also willing to go, but unfortunately I did not went. But definitely I am trying at IMS, Indian Military Academy Dehradun. So I would like to tell second. ये स्लाइड है ना, 30 सेकेंड्स के लिए अपेयर होएगा, उस पर 3 से 4 मिनट आपको स्टोरी लिखना है। तो दूसरा जो टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर, वो वैट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। मेरे को ये फेज 2 में क्या इंपॉर्टेंट लगता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट ये लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि आर्मी के जो ऑफिसर्स है वो कैसे रहने चाहिए, मतलब उनका सिचुएशन क्या है। आपको कहीं भी पोस्टिंग मिले तो आपका सिचुएशन रिएक्शन क्या होता है। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट तीसरा है, उसके बाद में बताता हूँ मैं। लेकिन सेकंड है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो इसमें क्या रहता है, ये सेकंड साइकोलॉजिकल टेस्ट है। तो कैंडिडेट्स आर शोन अ वर्ड ऑफ कॉमन यूसेज फॉर अबाउट 15 सेकेंड्स। 15 सेकंड ही दिखाएगा आपको एक वर्ड। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इस बुक में देता हूँ एग्जाम्पल में, क्योंकि वॉट एवर, मतलब ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का 15 सेकंड में आप एक सेंटेंस बना पाओगे क्या? हाँ, वो नहीं, वैसे थॉट्स तो बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको रिलेटेड चाहिए। हाँ, ये हो सकता है, मतलब आपको सेंटेंस ऐसा बनाना है जो कि कोई थॉट में रहे, आपको आपके दिमाग में आना चाहिए। आपका एनालिसिस क्या है, विजुअलाइजेशन क्या है, वो लोग साइकोलॉजिस्ट डिटेक्ट करता है, आपका आंसर जब चेक करता है वो तब। इसलिए आपको 15 सेकंड ही एक वर्ड दिखाएगा स्लाइड शो में, तो 15 सेकंड वर्ड देखने का है, लेकिन वो 15 सेकंड के अंदर ही आपको एक सेंटेंस लिखना है जो दिमाग में पहले आएगा वो, इसलिए उसका टाइम कम है। इसलिए आपको वो कम टाइम में कैसे इसको टफ और हार्ड बनाने का ये सोचता है इंडियन आर्म फोर्सेस। तीनों भी रहेगा, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मतलब इट इज वेरी गुड सर्विस। नाउ आपको फुल आया, फुल FOOL, एग्जांपल ले लो, फुल लिख लो, फुल। तो इस पे आप क्या बना सकते हो? ये कम टाइम में होना चाहिए, इसलिए आपको थॉट आना चाहिए। ऑनलाइन में बता सकता है कि कोई? आप आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? हाँ, ये भी ठीक। अच्छा, गुड। If a person goes to movie at
this time is a full. Okay, this is good. अभी ये कितने वर्ड्स आएंगे ये भी लिख लो. There will be 60 words. The 60 words, that is definitely you have to write 60 sentences. 15 seconds for each sentence. Means each word you have to write sentence. So I will give you few words. You practice at home or you write at home. I will give you first humanity. 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 Medicine. Hijack. Crook. CROOK. Brave. 5 हो गए. ठीक है, ये 5 प्रैक्टिस करते हैं. और इसका प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें क्या आना चाहिए, आपका पॉजिटिवनेस आना चाहिए, इसमें नेगेटिव नहीं रहना चाहिए. मतलब आप एग्जांपल भी दे सकते हो लेकिन उतना टाइम नहीं रहता, लेकिन तभी भी आप एडजस्ट करो एग्जांपल देना. मैं आपको एक पढ़ के दिखाता हूँ. इसमें अभी ट्रूथ है तो इधर ये इसमें क्या लिखा है, ट्रूथ इज ऑलवेज बेटर देन लाइफ. अच्छा है ना, मतलब सेंटेंस शॉर्ट है, कंप्लीट है, स्वीट है. उसके बाद में ब्रेव. अ ब्रेव सोल्जर इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड. उसके बाद में मदर. मदर पे आप क्या लिख सकते हो, क्या थॉट आएगा आपके मन में. आवर मदर टेक्स केयर ऑफ आवर नीड्स. मतलब ऐसे थॉट आने चाहिए जल्दी जल्दी. वे ब्लंडर. ब्लंडर मतलब क्या, मीनिंग बता पाएगा कोई. Mistake. नो, दिस इज डिफरेंट. हाँ, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर ब्लंडर्स. जो भी गलतियां हमने की है, ब्लंडर्स का अर्थ ये होता है. एंड ट्राई टू करेक्ट इट. नाउ आई वुड रेकमेंड टू build your vocabulary. The English tomorrow Joseph sir will take English lecture. Then definitely sir will tell how to build your vocabulary. This positive meaning words. This is very important for SSB. Your English should be good. Your vocabulary should be good. You should understand meaning. Then only you can form the sentence. Now as days are passing, as years are passing, the SSB interview is not getting easier. It is getting tougher. But it is not tough. It is not that tough. You can definitely crack SSB interview. You have to open your eyes and watch what's going around. Your current affairs should be there. Further, I will tell where current affairs are important, because current affairs is very important topic in written examination also and SSB interview also. I will tell you further. Okay. Now this was your WAT, that is word association test. Now the second test is situation reaction test. Now this is bit tricky, I call. Now the candidates will be given a booklet containing 60 situations. आपको 60 situation दिए रहेंगे, which he or she has to answer in 30 minutes. आपको सिर्फ 30 मिनट रहेंगे. 30 मिनट आपको लग रहा है इधर बहुत है, लेकिन बहुत कम रहता है, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट आप जब पढ़ाई करते हो ना, एनडीए का रिटर्न, तभी आपको सीखना चाहिए टाइम कैसे मैनेज करने का. मतलब अब आप पास्ट प्रीवियस इयर्स 10 to 15 इयर्स के क्वेश्चंस देखोगे, अभी 10 इयर्स के भी कैसे क्वेश्चंस, हर साल 2 पेपर होते हैं, ठीक है. तो उसमें से पेपर 1 एंड पेपर 2, मतलब जो पेपर अप्रैल में हुआ है और सितंबर या फिर अक्टूबर में, वो पेपर का एनालिसिस करो, क्या पैटर्न आ रहा है वो देखो. अभी एसएसबी का हम कुछ बता नहीं सकते क्या आएगा. हम इसका सिर्फ बेसिक आइडिया मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो रिटर्न एग्जामिनेशन है ना, उसके थ्रू आप एसएसबी का इंग्लिश और आपका जो वोकैबुलरी वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. रिटर्न एग्जामिनेशन के टाइम मैनेजमेंट से एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. और सबसे इंग्लिश, अगर आप मैथ्स क्वालिफाई कर जाते हो तो जो इंग्लिश का पार्ट है, इट इज वेरी स्कोरिंग पार्ट. अभी जो भी आप अगर मराठी मीडियम से होगा तभी भी, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा ग्रास्प करने के लिए. लेकिन जो इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कैसे, अगर वो ध्यान से पढ़ते तो उनका ग्रैस्पिंग पावर इज, आई विल नॉट कॉल गुड बट ओके.
तो वो भी ग्राफ्स कर सकते हैं और फिर सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। अगर न्यूज़पेपर नहीं दिख रहे, लेकिन न्यूज़ देखो, न्यूज़ चैनल, लेकिन इंग्लिश चैनल रहना चाहिए। मतलब बीबीसी न्यूज़ है या फिर और न्यूज़ गवर्नमेंट के जो है, मतलब है ना, गवर्नमेंट के चैनल, न्यूज़ चैनल। हाँ हाँ, दूरदर्शन का इंग्लिश में रहता है, वो भी अच्छा है। नहीं, ऐसे देखना चाहिए आपको। संसद, संसद चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। संसद में क्या बताता है, आपके करंट इश्यूज। नाउ 14th April recently we celebrated Dr. Pravin Mundhe Jayanti. So in that, what was the importance of constitution? As he wrote he's known as father of Indian constitution. Then what was his motive? What is the reason behind inclusion of what we can call it as reason? Are the aspects, these are the small points which are discussed on news channel, but students mostly neglect it. अब देखते नहीं हो, मैं भी था, मैं एकेडमी में था, तो उधर हमको न्यूज़पेपर आता था इंडियन एक्सप्रेस। तो my we were in group, so we used to study. I got daily basis habit of analyzing words from newspaper. मीन्स लीगल टर्म्स क्या है, जो कोर्ट में क्या यूज होता है, या फिर उसमें अलग अलग पार्ट्स का आता है, स्पोर्ट्स का आता है, इकोनॉमिक्स का आता है। इकोनॉमिक्स में आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर मोस्टली इम्पोर्टेंट इन रिटन एग्जामिनेशन, बट इसको आपको जो एसएसबी का डे 2 के बाद है, उसमें आपको इम्पोर्टेंट होएगा। तो अभी मैं कहा था एसआरटी ना, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो इधर आपको सिचुएशन देंगे वो लोग, तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लिख लो। यू राइट डाउन द एग्जांपल्स बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट। These are not asked, but this type of questions may be asked. अभी SRT will therefore reflect the aspirant's power of understanding, thinking आपका क्या है, उसमें इसमें से पता चलेगा ये टेस्ट से। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है आपका सोशल बिहेवियर, आपका कंसिस्टेंसी कितना है। अभी आप पढ़ाई करते हो, दिन में कितने घंटे, एक दिन किया 10 घंटा, दूसरे दिन कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं चलता। एक दिन 4 घंटा करो, वही 4 घंटा कंटिन्यू करो, तो आपका वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा पढ़ाई करने का। अभी आप लोग ने कंटिन्यूटी पढ़ा रहेगा, लिमिट्स पढ़ा रहेगा, पढ़ा ना, तो उसमें वो चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस बोलते हैं हम उसको मैथमेटिक्स में, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसका प्रैक्टिस रखो। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, वो समझ पा रहे हो ना आप? ऑनलाइन वाले कुछ तो बोलो, यस नो। हाँ सर। हाँ, तो आपका कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में you write down few sentences what I'm giving. You fall ill before your exams, comma, you will dash dash dash. What will be your reaction in this? So this is negative aspect. You don't have to. No, this is also negative aspect. Okay, this is good. तो मतलब आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि आप इल गिरे हो, लेकिन आपको खुद को ऐसा लिखना चाहिए कि definitely although I fall ill, but I will go to doctor, get cured and back to work, and I will go back to work. अभी इधर इसमें क्या लिखा है, ये जो सेंटेंस है पहले जो मैंने बताया अभी आपको, you fall ill before your exams, you will. So the answer is take medicine and proper rest, comma, punctual marks जो है, मतलब जो कुछ है, comma, full stop, it is very important ना. Take medicine and proper rest, comma, revise as much as I can, comma,
give the exam and pass with good marks. Okay, मतलब आपको इसको कैसे पॉजिटिव करने को आना चाहिए, वो आप सोचना चाहिए. अभी इसमें भी 30 मिनट्स है सिर्फ, और सेंटेंसेस 60 है. अभी एक आधा सेंटेंस या दो सेंटेंस में आप अटक गए तो वो सेंटेंस छोड़ देने का और दूसरे सेंटेंस पे जाने का, क्योंकि आप एक पे अटके रहोगे तो आपके मैक्सिमम सेंटेंस कंप्लीट नहीं होंगे. यू मस्ट एटलीस्ट 45 प्लस आपको जल्दी से जल्दी 30 मिनट्स के अंदर 45-50 प्लस आपको अटेम्प्ट करने को आना चाहिए कम टाइम में. Hello. So situation reaction test is based on this. Now the fourth is self-description test. Now in this test, you will be given answer booklet and you have to describe your own self. They will ask you few sentences. What is your passion? What is your father doing? And everything. This is your self-description. आप क्या describe कर सकते हो खुद के बारे में. यहाँ पे आपको ये लिखना है. ठीक है? हाँ? नहीं, I will explain you fast now. Okay. You can. I will share your slide with you. Okay, no problem. Candidates will be given a booklet containing 60 statements, which he or she has to answer. That is SRT. Okay. So SDT, जो मैंने बताया, self description test. It is a last test in psychological test. This test shows the maturity level of a candidate and how well he knows himself. What parents, friends, teacher or you डायरेक्टली आस्क देम, मतलब वो लोग आपके बारे में क्या थिंक करते हैं और उनके बारे में आप क्या थिंक करते हो, वो आपको आना चाहिए. ये 4 टेस्ट था. तो ठीक है, तो इसके बाद ग्रुपिंग टेस्ट होता है, ग्रुप टेस्टिंग. सॉरी. नाउ ग्रुप टेस्टिंग इज वेरी वास्ट. आई विल कंक्लूड इन 5 to 10 minutes. So group discussion is main part which is conducted by GTO, that is your ground training officer. Okay. Group discussion, as you sit in PP and DT, you have to sit in semicircle and you will be given topic. So your group has to discuss and one story has to come, good story, and you have to same explain to your interviewer. Okay. Now definitely he'll give you 2 topics. It may be related to current affairs or any of the study which you have written in examination, means written examination, polity, economics, anything can be asked. Okay, in group discussion. Now the second comes here, military planning exercise or group planning exercise. In this, you will be forming a group. They will form your group and they will show you a stand model and you have to write the story accordingly, and they will also show you PPT. तो आपको स्टोरी लिखना है, वो क्या सिचुएशन है, उसका आउटकम क्या है, ये स्टोरी लिखना है. वो स्टैंड मॉडल रहता है, देखो जो दिखाया है, बहुत सारे मूवी में दिखाया है. हाँ, वो स्टैंड मॉडल वैसा रहता है उधर. तो वैसे स्टैंड मॉडल रहता है क्योंकि आप क्या थिंक करते हो, सिचुएशन क्या है, वो सब आपको लिखना है वहाँ. ठीक है. ये हो गया मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. उसके बाद में पीजीटी, अब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क. ये फर्स्ट फील्ड एक्सरसाइज है. आपका फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपको ये टास्क इधर ऐसे रहते हैं जो फिजिकल फिटनेस आपको रहना चाहिए, मतलब ठीक ठाक फिजिकल फिटनेस आना चाहिए. तो इसमें आपको एक लैंड से दूसरे लैंड पे कैसे क्रॉस कर सकते हो आप. आर्मी वाले ब्रिज बनाते हैं फास्ट, अगर ऑपरेशन रहेगा तो वो सब इसमें रहता है. वो टेस्ट होता है कि आप कैसे कर पाओगे. तो आपको एक में से किसी को ग्रुप लीडर बनाया जाता है, फिर आप वो टास्क चैलेंज करते हो, वो सब है. उसके बाद में ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, इसको बोलते हैं स्नेक रेस. तो ये थोड़ा अच्छा टेस्ट है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको मोटिवेट करता है आपके आगे के एसएसबी के 1-2 दिन बचा हुआ उन दिनों में. हाँ, ग्रुप
ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस और जो स्नेक रेस है, इसमें आपके ग्रुप बने रहते हैं और आपस में कंपटीशन लगाते हैं। आपको ये बोलना रहता है भारत माता की जय, आपको टास्क देते हैं, वॉल क्लाइंबिंग करो, उधर से खुद ही मारो, रनिंग करो। तो जो कम टाइम में जीतता है ही विल बी सेफर साइड, और जो टाइम से बाद में आता है उसको नेगेटिव मार्क, मतलब वो कम कम मार्क्स करते जाते हैं ऑफिसर्स। तो ये ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। तो और उसके बाद में और एक टेस्ट है, वो है हाफ ग्रुप टास्क। जो पीजीटी था ना, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इसका ये शॉर्टर वर्जन है हाफ ग्रुप टास्क। वो सेम रहता है, सेम एज पीजीटी, बट इसमें कैंडिडेट्स कम रहते हैं। एक 4-4, 5-5 लोगों का ग्रुप बनता है, उसमें ज्यादा लोगों का बनता है, 12 लोग, 8 to 12 लोग का ग्रुप बनता है। हाफ ग्रुप टास्क भी वैसा ही है पीजीटी के जैसा। अभी मेन इंपॉर्टेंट है लेक्चरेट। लेक्चरेट में आपको टॉपिक मिलेंगे, आपको आपके पीछे या फिर सब स्टूडेंट्स के आगे जाके लेक्चरेट या फिर इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठेगा। तो नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब, ही विल गिव यू टॉपिक। So topic is medical issue in India. Yes, these are few topics. You can ask you any topic: education, public transport, anything they will give you. Economics, Indian economy. So you have to speak, and you have to speak in नेगेटिव पॉजिटिव। जो डिबेट रहता है इसमें वैसा रहना चाहिए, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए, और जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो एक दो लास्ट में मेंशन कर सकते हो आप। तो उसके बाद में आपका जो है लेक्चरेट होने के बाद ये इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है। अब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के लिए आपका फिजिकल फिटनेस थोड़ा रहना चाहिए। इसमें क्या रहता है कि रोप क्लाइंबिंग है, बर्मा ब्रिज है, मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे उल्टा लटक के जाने का। आपका बॉडी पार्ट ग्राउंड को टच नहीं होना चाहिए, इसके आपको पॉइंट्स है। टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट में आपको ये सब क्रॉस करना है। और यहाँ पे विसल पहले इंस्ट्रक्शन देगा, वो पहले कैंडिडेट जो रहेगा, ये विसल में आपको क्रॉस करना है, और दूसरे कैंडिडेट को बताएगा नहीं कि मैं विसल बजा रहा हूँ। फर्स्ट विसल वार्निंग विसल बजाएगा, दूसरे विसल में दूसरा कैंडिडेट फट से चालू होके सब टास्क चालू करने को देगा, और वो कम टाइम में करना है। तो उसमें क्या क्या टास्क है, मतलब जंपिंग ओवर अ स्लाइड, एक स्लाइड रहेगा, स्लोप डिच रहेगा, उसके आगे जंप करना है। वॉल क्लाइंबिंग 8 फीट का वॉल रहेगा, उसके बाद में क्लाइंब करना है। तो जिगजैग बैलेंस, ऐसे जिगजैग बैलेंस रहेगा, फटफट क्रॉस करना है वो, तो वो कम टाइम में करना है। और टायर में से जाने का रहता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, मतलब फील्ड पे लगा रहता है और टायर रहता है बड़ा वाला, उसके अंदर से पटकन पास करना रहता है आपको खुद को। उसके बाद में टार्जन स्विंग है, उसके बाद में क्लाइंबिंग वॉल है, वो बताया मैंने अभी। टाइगर लीप है, मंकी क्रॉल है। मंकी क्रॉल में आपको लटक के जाना है, क्योंकि वो एक एंड से रोप से रहता है और दूसरे एंड से भी रोप से अटैच रहता है, वो हिलता है। आप जिसे पैर रखोगे वो हिलने लगेगा, तो आपको उसको ग्राउंड को आपके खुद को टच नहीं होने को देने का, वो उधर जाने का, अगले साइड, मतलब दूसरे साइड। लास्ट में जो है वो इम्पोर्टेंट है रोप क्लाइंबिंग, तो आपको हाथ में ताकत रहना चाहिए, रोप क्लाइंबिंग आपको आना चाहिए। इसलिए थोड़ा बहुत फिजिकल फिटनेस या फिर रनिंग वगैरह आप रख सकते हो, 12वीं के बाद रखो, ठीक है। उसके बाद में कमांड टास्क है। तो कमांड टास्क क्या है यहाँ पर, तो देयर इज ओनली वन कैंडिडेट हु इज रिस्पांसिबल एट अ टाइम। तो जीटीओ जो था पहले का टास्क ग्रुप डिस्कशन, यहाँ से वापस वैसा ही है, ग्रुप डिस्कशन जैसा ही है वो, लेकिन ये क्या बोल रहा है, देयर इज ओनली वन ऑब्स्टिकल टू बी क्रॉस विद द हेल्पर। अभी आपको ये फलक्रम वो पता है ना आपको, लीवर, कैंटिलीवर, फलक्रम, जो फिजिक्स में पढ़ा है आपने, तो वैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स देंगे आपको जो पीजीडी में है। पीजीडी मतलब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, एचजीटी, और इसमें भी कॉमन जो है ना, कॉमन टास्क, तो उसमें आपको दूसरे एरिया में जाना है, या फिर आपका ग्रुप बना देंगे, वो भी दूसरे एरिया में जाना है। तो वो ऑब्स्टिकल की मदद से आपको जाना है। आपका पैर वो नीचे नहीं लगना चाहिए, ग्राउंड में पैर लगा कि आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, और लेकिन आपको वापस करना पड़ता है, आपको पार करना ही होता है। लेकिन सोच समझ के, इस एंगल पे वो रॉड लगेगा क्या, रोप कैसी बांधनी होगी, आपको वो क्रॉस कैसे करना होगा, ये सब पीजीटी, एचजीटी और कॉमन टास्क में आता है। ये आपको सब डिटेल में इंडियन आर्मी के वेबसाइट में दिया हुआ है। ओके, देन कम्स कमांड टास्क इज डन, देन फाइनल ग्रुप टास्क। आपका अभी बीच में स्टार्टिंग में आपका ग्रुपिंग का हुआ,
उसमें उसके बाद आपका इंडिविजुअल हुआ, ये वापस ग्रुपिंग का बुलाता है। क्योंकि आपका मेंटेलिटी चेक करता है कि वापस ग्रुपिंग का कैसे कैसे कर पाएगा क्या ये, मतलब बीच में इंडिविजुअल का था, अभी वापस ग्रुपिंग का, तो आपके ग्रुप बना देगा वापस ये और आपको टास्क देगा। तो उसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू, जो थर्ड है, सेकंड लास्ट एंड थर्ड मोस्ट। पर्सनल इंटरव्यू, हियर यू हैव टू बी वेरी हॉनेस्ट। आपका ड्रेस कोड प्रॉपर रहना चाहिए, आप हॉनेस्ट रहना चाहिए, ज्यादा पसीना वगैरह आना नहीं चाहिए, मतलब वो आता ही है, एंजाइटी होता ही है, लेकिन आप थोड़ा कूल एंड काम रह के आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, मतलब जा सकते हो मतलब जाना ही होगा। हाँ, ये याद रखो। वो क्या पूछेंगे, आपका एकेडमिक पूछेंगे, आपका प्रोफेशनल पूछेंगे, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछेंगे। उसके बाद में आपका जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताया ना, वो PIQ फॉर्म भर के लिए आपसे, तो उसका वो पर्सनल पूछेगा आपसे, ज्यादा डिटेल पर्सनल पूछ सकता है। द मेन इज पर्सनल अबाउट योरसेल्फ। सो इन पर्सनल इंटरव्यू द मेन टास्क इज टू आस्क योर एकेडमिक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सब एकेडमिक में आता है, आपके फादर के ऑक्यूपेशन वगैरह, लेकिन आपका पर्सनल भी, आप पर्सनल क्या करते हो, मतलब आप स्टडी कितने आवर्स करते हो, आप कैसे स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, आपने कैसे क्लियर किया, वो सब आता है पर्सनल, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट है कॉन्फ्रेंस। अभी ऑल्दो जो पर्सनल इंटरव्यू में पहुंच गया वो क्वालिफाई हो गया, लेकिन कॉन्फ्रेंस राउंड सबको रहता है, सबके लिए रहता है। अगर कॉन्फ्रेंस राउंड में बुलाया आपको, तो वो आपको मोस्टली रीचेक करते हैं कि ये एलिजिबल है क्या, इसका नेक्स्ट राउंड मेडिकल का रहता है, तो उसमें ये जा सकता है क्या, तो रीचेक करते हैं वो लोग। मतलब इस बार दूसरे ऑफिसर भी बुलाते हैं जो हाई लेवल ऑफिसर है, मतलब ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, मतलब जो कमांडिंग ऑफिसर है, जिनके पास पूरा ईस्टर्न कमांड है या फिर जो भी वेस्टर्न कमांड के मेन है, उनको भी बुला सकते हैं। आपका कॉन्फ्रेंस में वो सब चेक होता है। तो SSB इंटरव्यू इज वेरी गुड, I can say, and after clearing your written, definitely you will get SSB call. So focus on your writing skill, vocabulary in your written, that will benefit you in your SSB interview. So SSB interview is very tough kind of thing, but you will, as practice makes man perfect, that is very good, and definitely you will achieve what you have what you have studied in your written examination, that will help in your SSB interview. So any doubts? Online? डायरेक्ट SSB का टेक्निकल एंट्री स्कीम रहता है। अगर आपने JEE एग्जाम दिया है और 12th का एग्जाम दिया है, तो वो नोटिफिकेशन जारी करता है। यू मस्ट गो एंड चेक on daily basis in indianarmy.nic.in. It is only for Indian Army technical entry scheme. It is direct entry. You will have to fill the form for interview, and you will get direct SSB calls. So it is very good entry. Going for NDA and side by side applying for a technical entry scheme, it is also a good thing. You definitely must apply for technical entry scheme. So any doubts? Okay, so yeah, Kunal, have you finished? Yes, sir. Okay. Yeah, so thank you, Kunal, for your very exhaustive lecture on SSB. Okay, so अभी कुणाल ने आपके साथ जो शेयर किया है SSB का इंटरव्यू किस तरह से देना है, SSB को किस तरह से हैंडल करना है, उसके बारे में कुणाल ने काफी अच्छी जानकारी आप लोगों को दी। आई होप कि you will get benefited out of this session related to SSB. But the most important task before appearing for SSB is your written examination. So if you don't qualify written examination, you don't get chance to appear for interview, है ना। तो आप जब इसलिए आप लोगों को जो हमने कल और आज बातें बताई related to written examination,
है ना, उसमें रिटन एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चर बताया, मैथ्स है, साइंस है, जनरल स्टडीज है जिसमें ह्यूमैनिटीज है, इंग्लिश है, इसके ऊपर आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। और मोस्टली 10th में अगर आप हो 9th-10th में, तो तभी से आप लोग उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू, एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।